Sue Sri Dola Sen to raise matters with permission as regards demand to create employment opportunities for women and dismantle systemic barriers preventing their participation in the workforce. Thank you, Chairman, sir, for giving me chance to speak. Sir, my 0 hour today is the need to improve India's female labour force participation. I am proud to say that as a woman, I am the president of the AITC trade union wing for the state for 10 years and for the national level for 4 years, which is quite unlikely of mainstream politics as trade union is generally a male-dominated sector. I am thankful to my party, All India Trinamool Congress, and our honourable leader, Mamata Banerjee. Now, India's female labour force participation remains critically low. Recent periodic labour force survey indicates female youth labour force participation to be 28% only. Additionally, according to Time Use Survey 2024 of Ministry of Statistics and Programme Implementation, females spend 289 minutes on an average in a day in an unpaid domestic services for household members. Male members spend only 88 minutes in a day in such activities. This presents a significant challenge to both economic growth and gender equity. Expanding vocational training and skill development, particularly in high-growth sectors like technology, healthcare, e-commerce, will equip women with industry-relevant expertise. Strengthening maternity benefits, investing in affordable childcare and promoting paternity leave can help balance caregiving responsibilities, making it easier for women to remain in the workforce. Moreover, enforcing anti-discrimination laws, ensuring equal pay and fostering leadership opportunities for women will improve workplace retention and advancement. The Union government must take urgent steps to create employment opportunities, implement policies that support women in the workforce and dismantle systemic barriers preventing their participation. Strengthening access to education, vocational training, workplace flexibility can help bridge this gap and ensure greater economic inclusion for women in India. Sir, according to our constitution, everyone has equal rights irrespective of religion, language, caste, creed, gender, etc. But crude reality is not likewise. Starting from agriculture and farming to tea estates, biri industry, textile sector, including jute mill, finishing department and cotton industry, female workers neither get same wage nor gets the mutual respect even. And obviously the member of female labour force participation is declining gradually. Somehow we have this attitude towards women in our mindset. So even working women have to face this dignity issue by our society. In our state of West Bengal, our Honourable Chief Minister Mamata Banerjee is doing a lot for women empowerment and for the social development of women as a whole. That's why Bengal is getting first prize in different aspects in national level. And not only that, Bangla is getting international acknowledgement through various awards by UNICEF and UNESCO, which virtually strengthening our nation's pride. Thank you, sir, for allowing me to raise this important issue as 0 hour submission. I am sure, sir, he will definitely allow all of us to raise the issue of duplication of epic voter cards also, which affect both the male and female population. Thank you, sir. माननीय श्री रामजी लाल सुमन जी, डिमांड टू अमेंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956. उपसभापति जी, जब श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के शिक्षा मंत्री थे तो 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी और इस आयोग के गठन का मकसद था कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा दी जाए तथा शिक्षा का संतुलित विकास हो। उस सभापति जी, ऐसा आभास होता है कि जिस मकसद से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया गया था, ये आयोग अपनी सार्थकता खो रहा है। बदलते परिवेश में इसके एक्ट में परिवर्तन की आवश्यकता है। सभापति जी महोदय, जो फर्जी विश्वविद्यालय हैं, हमारे देश में अभी भी 22 फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, जिसे यूजीसी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। 1956 में जो प्राविधान था दंड का,
कि अगर कोई फर्जी विश्वविद्यालय पकड़ा जाएगा तो दंड का प्राविधान 1000 रुपए था। सभापति महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार से निरंतर आग्रह कर रहा है कि ये जो दंड का प्राविधान था नहीं के बराबर है, इस एक्ट में संशोधन किया जाए और कम से कम जो फर्जी विश्वविद्यालय उन पर 5 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की सजा का प्राविधान किया जाए। यह गैर जमानती अपराध हो, जिससे शिक्षा के काम में लगे वो जो माफिया है उन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जा सके। सभापति जी, पिछले 10 वर्षों में हमारे देश में 400 राज्य विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि बहुत तेजी के साथ शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। और मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश में जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनको भी अनुमति मिल रही है। उपसभापति जी, 2 विदेशी विश्वविद्यालय, एक गुजरात में, एक हरियाणा में, और ये जो गुड़गांव में विदेशी विश्वविद्यालय खोला जा रहा है वो साउथम्पटन के नाम से है। सभापति महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो एक्ट है उस एक्ट में विदेशी विश्वविद्यालयों के खोलने का कोई प्राविधान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी खोला जा रहा है नियमों के विपरीत। ये बहुत गंभीर मामला है। उपसभापति जी, जो दुनिया के दूसरे देश हैं उनके लिए भारत शिक्षा का अच्छा व्यापार है, और मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा। धन्यवाद। खत्म हो गया। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि बैठकर सीट पर आपस में बात न करें। प्लीज बहस चल रही, इसको शांतिपूर्ण चलने दें। माननीय श्री चंद्रकांत हंडोर, प्लीज, आपका खत्म हो गया। माननीय श्री चंद्रकांत हंडोर, डिमांड टू एबॉलिश बोध गया टेम्पल एक्ट 1949। सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, हजारों वर्ष पूर्व भारत देश के महान राजा सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार और अमल करने के लिए बिहार के गया जिले में भगवान बुद्ध का भव्य मंदिर बनाया। बिहार सरकार ने 1949 में बौद्ध गया मंदिर के बेहतर प्रबंधन के लिए बोध गया टेम्पल एक्ट बनाया। इस अधिनियम के अनुसार मंदिर प्रबंधन समिति के कुल 9 सदस्य की समिति बनी। उनमें 4 सदस्य हिंदू और 4 सदस्य बौद्ध और गया जिले के कलेक्टर ये पदासीन अध्यक्ष रहते हैं। कुछ सालों से मंदिर समिति के सदस्य में मंदिर को लेकर गंभीर मतभेद चल रहे हैं। बौद्ध गया मंदिर व्यवस्थापन के कुछ सदस्यों ने सत्य, अहिंसा, सद्भावना, करुणा, प्रेम, यह भगवान बुद्ध की विचारधारा को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा है, शुरू किया है। ये बात जब देश के बौद्ध समुदाय में फैली तब तमाम बौद्धों ने मंदिर समिति बर्खास्त करके बौद्ध मंदिर का संपूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण बौद्ध समुदाय को दिया जाए, ये मांग की और देश भर आंदोलन शुरू किए। सभापति महोदय, आज सभी धार्मिक संस्थानों के, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा हो, आमतौर पर अनेक उनके संबंधित समुदाय द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। तो अभी सवाल ये उठता है कि महाबोधि मंदिर जो विश्व भर के लोगों का प्रेरणा स्रोत है, वो अपवाद क्यों बना हुआ है? बौद्ध मंदिर भी बौद्ध जन समुदाय को सौंप देना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार ने अनेक कालबाह्य ब्रिटिश अधिनियम रद्द किए हैं। इसी तरह बिहार सरकार के साथ विचार विमर्श करके बौद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949 रद्द करे, बौद्ध समुदाय को यह मंदिर का प्रबंधन देने के लिए एक नया कानून निर्माण करने की मांग आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार को करता हूं। सभापति महोदय, माननीय पंतप्रधान मोदी जी जब अब्रॉड में जाते हैं तो वहां कहते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं। उन्होंने भगवान बुद्ध के पवित्र स्थल को जोड़ने के लिए बुद्धा सर्किट शुरू किया। हमारे नेता खरगे साहब, इनके नेतृत्व में कर्नाटक में अत्यंत भव्य दिव्य ऐसा बुद्ध विहार की स्थापना भी की गई है। तो ये महान अनुभव जब देश में भगवान बुद्ध का विचार का
काम करते हैं, तो बिहार के कुछ लोग ऐसा जो काम कर रहे हैं वो गलत है। तो मेरी मांग है कि उस 1949 का जो एक्ट है उसको एबोलिश करना चाहिए और नया कानून बनाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्रीमती रेखा शर्मा डिमांड टू इम्प्लीमेंट creche policy across the country to support working mothers and strengthen women's participation in the workforce. Thank you, sir. Honorable Chairman, sir, I rise to emphasize the critical role of creche facility in boosting women's workforce participation and driving women-led development, a key pillar of Viksit Bharat 2047. A structured childcare ecosystem is not just a social necessity, but an economic imperative, enabling women to contribute actively to nation building. Sir, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the government has championed women-led development. Recognizing the empowering women strengthens families, communities, and the nation. His commitment to inclusive growth is reflected in the introduction of National Minimum Standard and Protocol of Creches, ensuring quality childcare services, fostering a formal care economy, generating employment, and reinforcing Atmanirbhar Bharat. The availability of creche facilities helping in reducing career breaks, as many women are forced to leave their jobs due to lack of childcare support. Haryana led the way as first state to implement a creche policy in 2022, ensuring safe and accessible childcare for working mothers. It aims to open 500 creches under creche policy and has already opened 165 in first phase across 16 districts, with the plan to upgrade them and equip them with modern facilities. States like Karnataka and Odisha are also making progress. Sir, creche policy contributes to retaining experienced women professionals, thereby strengthening the economy and create more inclusive society. Thank you. Thank you. Manisri K. Velen Luana demand for declaring Lina Pui village of Mizoram as national importance. Yeah, thank you, Honorable Chairman. Yeah, brief history of ancient manhoods in Lianpui village. Yeah, Lianpui village is located at the extreme east corner of Mizoram, near Myanmar border. The village is in Champhai district with 156 households. The archaeologists from Regional Archaeological Survey of India, Guwahati, identified the ancient manhoods of Lianpui village as one of the important manhoods in Mizoram. Due to the initiative taken by Regional Archaeological Survey of India, Guwahati, these ancient manhoods are proposed to become national importance. On 9 February 2021, the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India issued preliminary notification at Gazette of India, which contained notice of its intention to declare the said manhoods to be of national importance. The notification also stipulated that any objections to such declaration may be made to the ASI within 2 months from the date of its issue. It appears that no objections were received within the stipulated time frame. The Regional Archaeological Survey of India, Guwahati, and the Archaeological Office, Mizoram, said that they have done the needful for declaration of national importance. The only need to do is just declaring an issue of notification. So, I kindly request the Union government to declare Lianpui village, Mizoram, as the national importance. Thank you, Honorable Chairman. Thank you. Dr. Sumer Singh Solanki demand to take preventive measures against rising incidents of road accidents in India. धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। नर्मदे हर, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान देश के एक गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपसभापति महोदय,
यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़क निर्माण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2014-15 में भारत में कुल 97,830 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बने थे, जो मार्च 2023 तक बढ़कर 1,45,155 किलोमीटर हो गए हैं, जो ऐतिहासिक कार्य है। माननीय उपसभापति महोदय, 2019 में मोटर वाहन अधिनियम को कठोर बनाने के बावजूद भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। यह हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। माननीय उपसभापति महोदय, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2022 के मध्य देश में कुल 36,02,913 सड़क दुर्घटनाएं हुई और इसमें 12,01,538 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कुछ परिवार तबाह हो जाते हैं और अंग भंग से भी लाखों भाइयों और बहनों की जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाती है। माननीय उपसभापति महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 4,29,407 लोगों ने अपनी जान गंवाई। स्टेट हाईवे पर होने वाली दुर्घटना में 3,13,917 लोगों ने अपनी जान गंवाई और अन्य लिंक रोड और छोटी सड़कों पर दुर्घटनाओं में 4,58,214 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। माननीय उपसभापति महोदय, इन सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए देश में इनको रोकने के लिए चिंता करने की आवश्यकता है। मैं एक समाधान में सुखद परिणाम का जिक्र भी करना चाहता हूं। इंदौर के पास मानपुर घाट, जो गणेश घाट के नाम से प्रसिद्ध था, उस पर प्रतिवर्ष सैकड़ों भाइयों और बहनों की दुर्घटना से मौतें होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ एक नई सड़क का निर्माण हुआ है और पिछले 3 महीने में एक भी दुर्घटना नहीं हुई है। ये सुखद परिणाम हमारे सबके लिए है। मैं माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि लिंक रोड और लोकल रोड होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से कहीं ज्यादा है। माननीय उपसभापति महोदय, प्रति घंटे 53 दुर्घटनाएं, 19 मौतें और हर दिन 1,264 दुर्घटनाएं और 456 मौतें हो रही है। ये आंकड़े इस विकराल संकट की गंभीरता को दर्शाते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, तेज गति से वाहन चलाने के कारण, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के कारण, शराब पीकर वाहन चलाने के कारण, सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने के कारण सड़क दुर्घटनाएं निरंतर हो रही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मोटर यान अधिनियम में और कठोर कानूनी प्रावधान करने की आवश्यकता है, ताकि ये दुर्घटनाओं को रोका जा सकते हैं और जो प्रतिवर्ष 1.5 लाख से अधिक हमारे भाई और बहन अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, उनको हम धन्यवाद। माननीय श्री प्रकाश चिक बाराई, रिक्वेस्ट टू रिलीज पेंडिंग फंड्स टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल यूज फॉर की वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम सच एज मनरेगा। माननीय श्रीमती ममता ठाकुर ने इस इशू के साथ एसोसिएट किया। प्लीज। थैंक यू वाइस चेयरमैन सर। पश्चिम बंगाल राज्य को विकास योजना जैसे मनरेगा के लिए बकाया धनराशि जारी करने के लिए अनुरोध। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, विशेष तौर पे मुझको आज बोलने के लिए मौका देने के लिए। मैं आज केंद्र सरकार का ध्यान अपने राज्य पश्चिम बंगाल से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, 2021 विधानसभा चुनाव के बाद में पश्चिम बंगाल राज्य के मनरेगा के तहत उनका वैध हिस्सा नहीं मिल रहा है। 59 लाख गरीब मजदूर परिवार जो काम किए हैं वैध तौर से, उनका वेतन उनको नहीं मिला। महोदय, गरीब परिवार बहुत गरीबी रेखा से आते हैं एवं कोई 20, कोई 25, कोई 50 दिन काम करने का बावजूद उनका वेतन उनको नहीं मिला है। उनका वेतन रोकने का नैतिक मूल ये गलत है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के मूल विशेषताओं का भी उल्लंघन है। अक्सर बढ़ती कीमत एवं व्यापक बेरोजगार के कारण इन मजदूरों को बिना वेतन में अपना जीविका अत्यंत कठिन हो रहा है। महोदय, वर्तमान में एमजीएनआरजीएस के लिए पश्चिम बंगाल 7,000 करोड़ रुपए पाती है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के आवास योजना के तहत जो धनराशि वो भी रोक के रखा है महोदय, जिससे बंगाल का 11 लाख गरीब परिवारों का पैसा रोका गया। आवास के बकाया पैसा अगर देखा जाए तो 8,000 करोड़ रुपया रोका गया महोदय। एवं डिपार्टमेंटली वाइज आवास एवं 100 दिन का पैसा अगर देखा जाए तो 15,000 करोड़ रुपया रोका गया महोदय। ये अत्यंत दुख का बात है। एवं डिपार्टमेंटल वाइज 1,070 करोड़ 1,70,000 करोड़ रुपया पैसा रोका गया।
बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बंदोपाध्याय की अगुवाई में 25,000 मनरेगा के वर्करों का पैसा दिया गया एवं 11 लाख नहीं 12 लाख परिवारों का घर का नाम में, बंगला और बाड़ी का नाम में 1,20,000 करके दिया गया, जिसका फर्स्ट अलॉटमेंट का पैसा 31 दिसंबर के भीतर दिया गया। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, धनराशि रोकने कॉन्स्टिट्यूशन एवं फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक गंभीर उल्लंघन है। मैं निवेदन करता हूं, गरीब विरोधी ना बने, जन विरोधी ना बने, लोकतांत्रिक विरोधी ना बने। यदि आप बंगाल में चुनाव जीतना नहीं सकते हैं तो इतना कम से कम तरह का छोटी राजनीति करना बंद कीजिए। मैं आपके माध्यम से एक आग्रह करना चाहता हूं गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, इन लाभार्थियों का धनराशि तुरंत आप भुगतान करें एवं उनका अकाउंट पे पैसा मिले, राज्य के अकाउंट पे मिले। इसके साथ ही मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं महोदय, आज जिस तरह से मुझको 0 आवर में बोलने का मौका मिला, इसी तरह 267 में भी डिस्कशन मिले एवं वोटर कार्ड के लिए डिस्कशन हो, इसका मुद्दा उठे। बोल सकते हैं जो भी अतिरिक्त बात इस विषय के अलावा बोली है आपने, रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। नो द रूल्स प्लीज। Sri Amarpal Maur demand to establish Gram Sansad across the country under the Panchayat Raj system. धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। महोदय, भारत मुख्य रूप से गांव का देश है। भारत की कुल आबादी का लगभग 70% गांव में बसता है। मैं भी एक गांव का किसान हूं। महोदय, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि विकास और शासन के जो मुख्य तत्व बड़े शहर नहीं है, उनका केंद्र बिंदु ग्राम है। और देश जो है, भारत देश गांव में बसता है और गांव की व्यवस्था कुछ दशक पुरानी नहीं है, ये सदियों पुरानी है। महोदय, जिस प्रकार से देश के जो है पंचायत में यहाँ देश की संसद है और सत्ता पक्ष के और विपक्ष के नेता बैठ करके देश के विकास में चर्चा करते हैं, उसी प्रकार से गांव की भी अपनी एक संसद हो और वहां पर गांव के विकास की चर्चा की योजना बने। महोदय, देश में ऐसे 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं और 6,000 से ज्यादा जो है ब्लॉक हैं। और मैं तो जिस प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश में ऐसे 58,194 ग्राम पंचायतें हैं। 7,32,000 से ज्यादा वार्ड के सदस्य हैं। 77,000 से ज्यादा क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं। महोदय, इन सबको मिलाकर के एक ग्राम संसद की जो स्थापना है और ये बैठ करके जैसे हम यहाँ चर्चा करते हैं विकास की, वो अपने गांव की एक चर्चा का केंद्र बिंदु बने। महीने में कम से कम 10 दिन इनकी जो है योजना गांव के विकास को लेकर के ग्राम पंचायत में बैठ करके चर्चा का केंद्र बिंदु बनाया जाए। चूंकि अभी देखा जाता है कि गांव में ग्राम का प्रधान और ग्राम का सेक्रेटरी, इन्हीं दोनों के बीच में गांव की पूरी योजना जो है थैले में बंद रहती है। महोदय, पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारे लोगों ने हमेशा सुधार की जो है चर्चाएं किया है, चाहे 1957 में बलवंत राय मेहता की समिति हो, 1963 में के संस्थानम की समिति हो, अशोक मेहता की समिति 1978 में, जीवीके राव की समिति 1985 में, 1986 में ML सिंघवी जी की समिति हो। इन सभी समितियों ने इस पे चर्चा किया है कि गांव की व्यवस्थाएं, ग्राम आधारित व्यवस्थाएं जब होगी तो गांव का विकास होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गांव को केंद्र बिंदु बनाया है, विकास का केंद्र बिंदु गांव बनाया है। देश में जब 1857 की जब क्रांति की बात थी तो अंग्रेजों ने गांव की व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा, इसलिए वो 1858 ले आए और गांव का जो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था थी उसको समाप्त करने का काम किया। मैं इस व्यवस्था को, जो ग्राम संसद की स्थापना है, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि गांव में ग्राम संसद की स्थापना हो और गांव के विकास की चर्चा हो, जिससे ग्राम आधारित जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसको पुनः स्थापित करने में जो मोदी सरकार का योगदान है, आपके माध्यम से वो पुनः स्थापित हो। इतना निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। डिस्कशन